the story of their pain, the story of loss for decades, the story of ever-increasing disempowerment and poverty. The hills and forests of Aravalli in Rajasthan have been a silent witness. As the security drone camera of the Forest Department sweeps over what is the largest continuous forest cover in the desert state, these men are first befuddled by the drone and then run for cover. The dry, deciduous forests are reserved land. No economic activity is allowed without a license. They cradle within the world-famous red sandstone mines, the building block of India's iconic monuments, the Parliament, the Red Fort, Fatehpur Sikri and hundreds of forts and palaces and places of worship. The stones are always in heavy demand both in the domestic market and abroad. Red sandstone is soft, so mining depends entirely on manual extraction. It is well known and well documented that thousands of miners have died and continue to die of silicosis, an irreversible condition with no cure as they constantly inhale the silica dust in the stones. The government has brought in protective interventions in the legal mines, but there are no regular checks in these remote areas, and illegal mines in the forests run into hundreds. Since mining is the main source of livelihood, the poor and landless men keep working despite the dangers. Left behind are villages after villages of women, their sons, husbands and brothers killed by silicosis. Suman's husband Khemraj worked in the mines since he was 15. He died at 28. Suman puts food on the plates of her 2 children by working as a daily wage labourer in farms and construction sites. आपके पति कब से खदान में काम कर रहे थे? शादी के पहले भी खदान में काम कर रहे? शादी के पहले भी कर रहे और शादी के बाद 7 साल मेरे सामने करिए। तो शादी के बाद में बीमार पड़ गई 7 साल बाद। क्या तकलीफें होती थी? मैंने ऐसे तकलीफ होती कि शाम को आते काम करके तो बुखार चढ़ता हाथ पाँव दर्द करती, फिर खांसी उठती। ऐसा कितने दिन चला था? भाग के इलाज चले यहाँ करौली कम से कम 2 साल, पैसा ही पैसा से 2 साल इलाज करौली चला। फिर बाद में ज़्यादा एक दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, पागल सा होगा ऐसा करते। प्रेमराज डॉक्टर को भर्ती कराया, 4 दिन में होश में नहीं आया, फिर 7 महीने सही रहा। खूब ऐसे तो थोड़ा बहुत बैठे जाता खाट पे, कोई रिश्तेदार पे चले जाते। 2-3 लाख तो बैंक कर्जा कर लिया के ऊपर हमने। आपको पहले किसने बताया कि सिलिकोसिस है? लखनलाल डॉक्टर को इलाज चलो बने कई पापा आते मेरे कैसे से बीमारी है हम लिख रहा हूँ जी। ऐसे तो मुझे याद नहीं है सही से, ये भी इनका एक्सरा बहन जी। एक ज़रूरत सबसे पहले तो मेरे बच्चा पढ़ने चाहिए, एक बच्चा एक बच्ची पढ़ने चाहिए, और दोबारा खाने को नाच चाहिए, क्योंकि हम कमाई करेंगे तो कौन सी चीज़ को करेंगे, कम से कम नाच तो चाहिए। As we are talking to Suman, the news spreads through the village and women start gathering around. Each one has lost 2 or more men in their family. बहुत है कि बहन जी ऐसे बहुत औरत बेवा ज़्यादा आए हैं या गांव में। अब आए भी खाने को धंधो कर रहे हैं, मतलब तो खाने से ये धूल उड़ के हर एक तरह की बीमारी लग जावे और फिर दिखाए भी भराए भी। और मैंने तो देखो बहुत तरह को इलाज करवाया तो पर आराम नहीं मिलो कतई, तो 3 साल में ख़त्म हो गए। अकेले जा से घर थे तो साधन में जामे तो मतलब भीड़ भाड़ हो गए, तो कोई आदमी
आपस में कोई देख के हंसी मजाक करने लगे या कोई छेड़खानी करे। यहाँ औरत दो हिस्सा की औरत है और एक हिस्सा का आदमी, इतने औरत ज़्यादा है, बीमारी तो आदमी खत्म है गए। Villages after villages that we have visited here in Karoli, along its famous stone quarrying mines, we have met hundreds of women. Mothers who have lost their sons to silicosis and wives who have lost their husbands. In some villages, we see only women and children because there are hardly any men left. It is a story that a community correspondent with video volunteers, Sunita Kasera, has trained her camera on. जब मैं यहाँ कम्युनिटी में आई और मैंने हर विलेज में देखा तो विधवा महिलाओं का तो मिला, बट जब उन महिलाओं से मैंने बात की तो उनके बारे में पूरा स्पष्ट तो तभी क्लियर हो पाया कि महिलाओं ने बताया कि जो विधवा महिला हैं उनके लिए पेंशन बनाई गई है, सरकार ने खास सुरक्षा योजना बनाई गई है, श्रम विभाग की काफ़ी सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन उनको किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है। महिलाओं को उनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता। वो विडो हैं तो वो अपने घर में ही रहेंगी। जैसे एक परिवार में 4 महिलाएं हैं, 3 विडो हैं, 1 पुरुष कमाने वाला है, तो वो ही कमाता है। उनकी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो समाज में भी लांछन लगाया जाता है कि इतनी बड़ी बच्ची होती है, आज इसका पति होता तो वो शादी कर देता। इस तरह की जब महिलाओं से बिल्कुल उनसे जाके घुल मिले हम, तब उन्होंने ये बारीकी से बताया कि ये समस्या हमें आती है। महिलाओं को अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बेलदारी के लिए भी जाना पड़ता है, काम करने भी जाना पड़ता है, और बच्चे कई जगह तो ऐसा है कि बच्चे बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। शहर जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन बिल्कुल गांवों में महिलाओं से हर घर घर जाके मिले, तब जाके इसका स्पष्टीकरण हुआ कि सिलिकोसिस क्या है और किसके कारण विडो हुई है, विडो होने के पीछे क्या लॉजिक है, कि महिलाओं के बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वह उसी के साथ में महिलाओं के खुद के जीवन पे क्या असर पड़ा। सबसे दुखदायी केस मैंने पारासरी विलेजेस का देखा कि यहाँ पे एक घर में 4 महिलाएं थी, जिसमें से उनकी सास और 2 महिलाएं, उनके पति 8 दिन के अंदर दोनों भाई एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद आज 4 महीने हो गए उनको। उनका बच्चा है वो चाइल्ड लेवल का काम करता है, बाहर केरला में काम करता है। जो उनकी माँ है ना तो उनको पेंशन बनाई गई, ना ही उनको कोई खास सुरक्षा है, किसी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। वो आज महिला इतनी अपने आप में वो है कि उसको भीख मांग के भी पालन करना पड़ता है, क्योंकि एक ही देवर वो भी खान में काम करता है। जब ये देखने लायक बात है कि 2 भाई सिलिकोसिस से खत्म हो चुके, तीसरा पीड़ित है, उसको भी खान में काम करना पड़ता है। तो इस तरह की कहानियों को, या इस तरह की चीज़ को आके कोई देखे तभी उनको पता चल जाता है कि किस तरह की दुख दर्द कहानियाँ हमारे ज़िले में और हमारे ग्राउंड लेवल पर हो रही हैं। ये सरकार की पालनहार योजना भी बनाई गई है, लेकिन वो महिलाएं, उनको कोई बताता भी है, एजेंट के जरिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इन महिलाओं की सुनवाई नहीं करता है पालनहार की। जबकि पालनहार स्कीम के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिसका पति खत्म हो गया और उनके छोटे बच्चे, उनको पर बच्चा 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे उन महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं थी। और जिन महिलाओं को मिल भी रही है तो उनके बच्चों के भी नाम काट दिए गए हैं। We visit that family in Parashari village with Sunita. सास भी विधवा है, हम 2 बहनें, हम 2 विधवा बह गए, एक यही बच्चा रहा, पूरे परिवार में यही है बस। इनको सिलिकोसिस की है, पत्थर का काम कर। अस्पताल से बोला है सिलिकोसिस है? हाँ। तो जब सिलिकोसिस होता है तो 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। हाँ। तो वो नहीं मिला आप लोगों को? इनको मिलेगा। मिला है। वो पैसे का क्या हुआ? ये पैसे का ये हुआ कि दूसरे का पैसा आया तो वो दे दिया, उधारी जो किया था। In 2011, the National Human Rights Commission tabled a report to the Parliament and said failure of the government to provide health facilities was a violation of human rights, while suggesting that the government should ensure healthcare to minors in silicosis-prone areas and earmark adequate compensation to the families in case of death. If a person is diagnosed with silicosis, the government pays him 1 lakh rupees for treatment. Most widows here have received a compensation of 3 lakh rupees. The government disperses to the next of kin in the event of a silicosis death. However, in most cases, the widows use that money paying back loans they accumulated when the husband, the only earning member, was ill,
could not work anymore and money was required for his treatment.